हम लोग अल्काइंस देख रहे थे लास्ट टाइम, बराबर। तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। विराज शाह को अगर कोई जानता है तो उसको हिलाओ जरा। हाँ, ओके। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो इट दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द alkenes and alkenes. They are less dense than water, मतलब उनका डेंसिटी वाटर से कम है। They are insoluble in water and quite soluble in less polar organic solvents. Benzene, they are soluble in ether, benzene, carbon tetrachloride. The melting point and boiling point of alkyne increases with increase in molecular mass. तो ये कॉमन चीज याद रखना। Okay. Now, arrange the following question लो। ये आज का क्वेश्चन है। Arrange the following in increasing order. Of boiling point. Propene, propane, propine. चलो करो। Send me the answer. So sp2 hybridized. Yes, Vaishnavi, correct. This is sp3 hybridized and this is sp hybridized. If I talk about electronegativity order, तर प्रतीकला मला वाटतं काही समजतच नाहीये. आन्सर सेंडच नाही करत आहे. Electronegativity order, sp is greater than sp2 is greater than sp3. It is on the basis of percentage of s character. Okay, right? So as the electronegativity increases, acidic characters also increase. So acidity order will be CH3, CH2, CH3. Propane is less than CH3, CH, double bond CH2. Propene, CH3, C, triple bond CH. So propine has acidic hydrogen than propene, than propane. Good, very good. अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखो।
distinguish between terminal and non-terminal alkynes. Okay, R C triple bond CH when react with AgNO3, what will happen, you know? There is a formation of C minus and Ag plus silver acetylide or white precipitate. This is a white precipitate plus HNO. So terminal alkynes means what? Where the hydrogen atom is free. If I talk about non-terminal alkyl halide, मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है sp कार्बन को अटैच, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. Carbon carbon triple bond is present between. When I react with this AgNO3, there will be no white precipitate. Understood? So this test is used to distinguish between, okay, distinguish between what? Terminal and non-terminal alkyne. One more example. इसमें ही देता हूं मैं. RC triple bond CH when react with Cu2Cl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड. ओके, इधर लिखता हूं क्यूप्रस क्लोराइड. Cuprous chloride, or you can just only write cuprous ion. What do you mean by cuprous? The charge on copper is +1, so that it will give you RC triple bond CH, C minus and Cu plus. Okay, it will be 2 times बैलेंस करने के लिए. तो ये भी क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस व्हाट? 2HCl. But non-terminal, since there is no hydrogen, no reaction, so no white precipitate. Understood? Is that clear? Yeah, please note down these reactions. And then write down these statements also. सर बोलना. आपने क्यूप्लस क्लोराइड का 2 फॉर्मूला लिखा है, कौन सा वाला करेक्ट? ये वाला ही करेक्ट है. ये ऊपर वाला मतलब ये रिएक्शंस के बाद लिख लेना जो स्टेटमेंट लिखा है वो.
सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मतलब H2. So if I react hydrogen in presence of nickel, platinum or palladium, will have CH2 single bond CH2. So the product is alkene. But if I react with Lindlar's catalyst, palladium barium sulfate और palladium carbon, मैंने बताया था some part of palladium is poisoned. Okay, so we have a cis alkene. cis alkene ये मैंने बताया था तुम लोग, right? Next one is addition of halogens. Addition of halogens, chlorine, bromine, iodine, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे. So how the addition is taking place? So ये है alkyne, react with halogen. So एक का halogen इधर, this is taking place in presence of carbon tetrachloride solvent. It acts as a solvent, so that we have a product like this. Another halogen is added in presence of carbon tetrachloride X, X, sorry, X होना चाहिए. So यहाँ पे क्या मिला? Dihalo compound. Here we have tetrahalo compound. This is what? Tetrahalo compound. तो मुझे ये बताओ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर होगा या नहीं होगा? ब्रोमीन वाटर का कलर यहाँ पे डिसअपियर होगा या नहीं होगा? बोलो जरा. याद है ना, हम लोगों ने किया था, अल्कीन्स में किया था, और मैंने बताया था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. दो टेस्ट बताए थे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. एक टेस्ट था ब्रोमीन वाटर और दूसरा टेस्ट था सैचुरेशन. द सेकेंड टेस्ट इज बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट के एमिनोफर वाला टेस्ट, राइट? सो अगर समझो मैंने एसिटिलीन लिया, and if I react this with bromine, liquid bromine, in presence of carbon tetrachloride, what will happen? Bromine is added, so obviously यहाँ पे क्या होगा? What will happen? The color of bromine disappears. Excess of bromine further react with carbon with this alkene, and we have now tetrabromo derivative. इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन. ये इथीन, ये इथेन. इथीन क्यों? डबल बॉन्ड है इसकी. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर of bromine disappears when reacted with alkyne. ठीक है, लिख लो. Write down everything. Next one, addition of hydrogen halide. This is reaction number 4. Addition of
hydrogen halide. Addition of HCl, HBr and HR to alkyne across carbon-carbon triple bond is in a two-step to form geminal dihalide. ये क्या है मैं बताता हूँ. The addition of HX in both the steps taking place via Markovnikov's rule. Okay. देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ. Addition of HX in alkyne is two steps process. It follows Markovnikov's rule. तुम लोग पूरा लिखोगे. Markovnikov's rule. What was the Markovnikov's rule? Negative part of reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen across यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. ओके. geminal dihalide. Geminal dihalide. When two halogen atoms are bonded with same carbon atom, okay, इनकी जरूरत. Two halogen atoms or in geminal dihalides, two halogen atoms are bonded with same carbon atom. जैसे that is X X R form. देखो एग्जांपल देखो. सी हम लोगों ने एक विसिनल डायहालाइड भी देखा था. विसिनल डायहालाइड कोई बताएगा विसिनल डायहालाइड क्या होता है? यस योगिता, व्हाट डू यू मीन बाय विसिनल डायहालाइड? Vicinal dihalide. Kaumudi, can you tell me what do you mean by vicinal dihalide? बोलो. Kaumudi, Yogita. Correct, Ami. Yogita. Different मतलब? So different मतलब? Correct पुष्कर. Very good. हाँ. अरे योगिता ज्यांना विचारलं ते आन्सरच नाही करत. करेक्ट मेधा. करेक्ट विधी. हाँ ओके सोहम. योगिता कौमुदी ऐड करे. करेक्ट करेक्ट. अथर्व नाही असं नाही. अथर्व काजवे असं नाही. येस करेक्ट ईशान करेक्ट. कौमुदी नाही माहिती. हे कौमुदी. हेलो. अरे
शिकवलं की असं काय करते. अरे पेजेस थोडी टर्न करायचे आपण, काय हरकत नाही. एक्झामला कॉपी करायची नसते. विसिनल डायहॅलाइड. राऊत लक्ष द्या. मागे साहेब, पुष्करने आन्सर दिले. प्रतीक, संस्कार. 2 halogen atoms are bonded with adjacent carbon atom. Adjacent carbon atom. Adjacent मतलब ऐसे ना. उसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड. और व्हेन सेम कार्बन को अटैच रहेंगे तो जेमिनल डायहैलाइड. मतलब मैंने ऐसे याद रखा, मतलब राइमिंग बनाया. जेम सेम, जेमिनल सेम, geminal dihalide same, halogen atoms attached to the same carbon. Okay, yes, Kaumudi, understood? Yes, sir. When it react with HX, H plus, X minus, negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen, so that we are getting CH double bond CX. This is actually nothing but vinyl halide, common name, common name, in which further HX is added, H plus X minus CH, CX. Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen. ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा. CH2 single bond X, X, this one. This is called as geminal dihalide. Please note down. Order of reactivity of halo acid is HI is greater than HBr is greater than HCl. Now that depends on a bond length, ना. HI आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है ना, than Br, than Cl. तो ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, इसलिए HI बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसलिए HI is more reactive than HBr than HCl. ओके, मैं एग्जांपल्स बाद में करवाता हूं, पहले मैं जनरल रिएक्शंस करवाता हूं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट. ये देखो रिएक्शन फिफ्थ वन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हम लोगों ने अल्कीन्स भी देखा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी देखा. हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, बट डायरेक्ट वाटर के साथ तो रिएक्शन होता नहीं. So for that purpose we require some catalyst, और वो कैटलिस्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट. अभी कुछ कुछ बुक में उन्होंने एग्जैक्ट परसेंटेज भी दिए, 40% H2SO4, मतलब 40% by weight, 40 grams in 100 grams of water, and 1% HgSO4. ओके, मैं सबके नाम लिखता हूं, डोंट वरी. ये है अल्काइंस. तो क्या होता है, हियर द एडिशन विल टेक प्लेस एंड दैट एडिशन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल. दैट एडिशन इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल. मैं वापस एक बार समझा रहा हूं. अभी यहाँ पे ना मैं और एक चीज बताऊंगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए. ऑर्गेनिक में ना ये बहुत बार होता है, मैं बार 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 वही चीजें रिपीट करूंगा. ओके, देखो ये ऐड हो गया ऐसे, तो मुझे क्या मिला, OH. This is right. You know this is nothing but double bond और OH. मतलब ये क्या हो गया, इनॉल. ये किधर तो वर्ड सुना है हम लोगों ने,
इनॉल, किधर सुना है इनॉल वर्ड? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, किधर सुना है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो याद है टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये इधर आ जाता है, ध्यान से देखो राउत, ये बॉन्ड इधर आ गया एंड दिस हाइड्रोजन कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए इधर गया। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नाउ? देखो जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उसको मैं लिख देता हूं, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। सो नाउ दिस इज नथिंग बट योर कीटो फॉर्म, right? So these two are what? Tautomers of each other. Clear? समझ में आया? यह है एडिशन ऑफ अल्काइन। ओके, लिख लो। Those who are still struggling, please read the things again and again. चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, लीनियर पॉलीमराइजेशन। ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है। हाँ, लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, so two acetylene molecule undergo polymerization, undergo polymerization at under suitable conditions, मतलब catalyst, high temperature, pressure, okay? So यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो कौन से कैटलिस्ट वगैरह उसकी जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर, ओके। व्हाट विल हैपन, देखो ध्यान से देखना, पॉलीमराइजेशन, आई एम सेइंग पॉलीमराइजेशन, हाँ। सो व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ये ना एसिटिलीन ऐड होता है अक्रॉस दिस। तो एडिशन कैसे होगा मालूम है? ये हाइड्रोजन जाएगा, मतलब समझो ये बॉन्ड इधर गया, तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये इधर जाएगा,
right? And कैसे बताऊं मैं? I'll show you the directly the product. ये देखो, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH. इज दैट क्लियर? ये प्रोडक्ट मिला. ओके, नाउ इसको अगर मैंने आगे और रिएक्ट किया, देन व्हाट विल हैपन, मतलब ये कंटिन्यू होते जाएगा आगे. सो n टाइम्स this on polymerization will have CH2 double bond CH C डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वापस CH डबल बॉन्ड. This will polymerize like this way. CH2 single bond CH double bond C CH2 सिंगल बॉन्ड. ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा n टाइम्स. दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीएसिटाइलिनाइड acetylene, which is used which is a good conductor of electricity because of free electron. Good conductor of electricity. So ये जो पॉलीमर है ना, उसका थिन फिल्म हम लोग इलेक्ट्रोड पे लगा दें, which is comparatively cheaper than that of the metals. ओके, और हम लोग ये किस पे भी लगा सकते हैं ना, प्लास्टिक पे लगा सकते हैं, वुड पे लगा सकते हैं, रबर पे लगा सकते हैं, किस पे भी लगा सकते हैं. ओके, दिस थिन फिल्म. सो these are the advances taking place in a chemistry कि दे वांट टू रिप्लेस मेटल. अभी मेटल का एक्सट्रैक्शन का खर्चा, उसका प्यूरिफाई करने का खर्चा बहुत ज्यादा है. मेटल्स आर वेरी, और हाईली कंडक्टिव मेटल है प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर वेरी कॉस्टली. तो उससे सस्ता ही है बनाना. ओके, ऑब्वियसली सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में ही उसको यूज करते हैं. हर जगह पे हम लोग ये यूज करेंगे तो दैट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. बट इन मेनी प्रोसेसेस वी कैन रिप्लेस मेटल, मतलब मेनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस में metal can be replaced by these film, polyacetylene film. Okay, please note down. एक्चुअल रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, मैंने ये शॉर्ट में तुम लोग को बता दिया है. टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया नहीं, दे हैड जस्ट गिवन यू इंफॉर्मेशन.
डन। द नेक्स्ट वन साइक्लिक, हो गया ना सबका लिख के? यस, कौमुदी डन, विधि? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर ये साल के जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। ओके, तो बता दो क्वेश्चन क्या है वो। हाँ, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बिकॉज यहाँ पे बेंजीन जैसे कंपाउंड मिलते हैं। देखो ध्यान से देखना, दिस इज एसिटिलीन, 3 moles of acetylene, 3 moles of acetylene when passed through a red hot Fe tube at about 873 Kelvin, क्या होगा देखो, पॉलीमराइजेशन। सो ये Fe act as what? Catalyst, राइट? तो इसका मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड ये दो कार्बन के बीच में आ गए। दिस पाई बॉन्ड इज टेकिंग फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दीस टू कार्बन एटम और ये इधर आ गया। So what I will write 6 carbon atoms ऐसे, ओके, ठीक है? उसके बाद देखो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड हो रहा है, और वो कैसे ऑल्टरनेट है, और जहां पे बॉन्ड नहीं है वहां पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। रिमेनिंग वैलेंसीज आर satisfied by hydrogen, CH, CH। What is this? क्या है ये, बोलो जरा, What is this? कौन सा कंपाउंड है ये, कौन सा कंपाउंड है? Benzene, correct. This is nothing but benzene. So acetylene on cyclic polymerization gives you what? Benzene. Okay. ये साल के जेई मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये लिखो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। I tell you the question. क्वेश्चन ये था, which of the following compound produce aromatic compound on passing through red hot Fe tube, Fe tube? Option A propane, option B propene, option C propine, and option D ethene। ये क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन था जेई मेंस में। ओके, सो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इधर भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहेगा। कैसे रहेगा वो रिएक्शन, मैं बताता हूँ। आंसर इसका सी है। कैसे रहेगा रिएक्शन, आई विल एक्सप्लेन। पहले लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू द रिएक्शन। ये प्रोपाइन
चलो, I'll show you the reaction. I hope everybody has done this. प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा CH3, देन C CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, pass through red hot Fe tube, 873 Kelvin. What I said, pi bond यहाँ पे आएगा, pi bond ये दो कार्बन के बीच में, ये दो कार्बन के बीच. So draw the structure. मैंने क्या बोला था? Put 6 carbon atoms like this way. So जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे? डबल बॉन्ड. और वो कैसा है? ऑल्टरनेट है ना, करेक्ट. और जहां पे बॉन्ड नहीं है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे? सिंगल बॉन्ड. आई एनकरेज यू टू यूज कलर्ड पेन, बराबर. और बाकी तो अपना मिथाइल ग्रुप और कार्बन है. देखो यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल रखा तो यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा मिथाइल. सो हियर वी हैव हाइड्रोजन, हियर वी हैव मिथाइल. सो अल्टरनेट मिथाइल ग्रुप है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है. इसका नाम क्या है? 1,3,5. 1 2 3 4 5 and 6. Trimethyl benzene. 1,3,5 trimethyl benzene. इसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन. इसका कॉमन नेम क्या है? मेसिटिलीन. प्लीज नोट डाउन दिस. चलो डन हो गया, लिख के. हेलो, क्वेश्चंस है. So these questions will be based on some reactions which we already done. Okay. What happens when acetylene reacts with a Br2 liquid bromine, B chlorine, C HBr, D dilute H2SO4 and HgSO4. Okay. E pass react with hot, red hot Fe, G ozone. क्विकली बता देता हूं मैं बिफोर वी गोइंग फॉर द ब्रेक.
acetylene CH triple bond CH will react with bromine. फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, एरोस जैसे मैंने किया है वैसे एरोस तुम लोग भी करना. What we have, CH Br double bond CH Br 1,2 डाइब्रोमोइथीन. इसको ना कुछ लोग एसिटिलीन डाइब्रोमाइड भी बोलते हैं, बिकॉज ये एसिटिलीन से बना इसलिए एसिटिलीन डाइब्रोमाइड. दिस एसिटिलीन ना, इसलिए इसको एसिटिलीन डाइब्रोमाइड भी बोलते हैं. बट एक्चुअल नेम 1,2 डाइब्रोमोइथीन. अगेन देयर इज एडिशन. So the structure will be CH Br and Br. Br सैचुरेटेड हो गया ना ये पूरा, इसलिए इसका नाम होगा 1122 टेट्रा ब्रोमोइथेन. In some book it is given acetylene tetrabromide. Okay, करेक्ट नेम ये है. क्लोरीन तुम लोग लिख सकते हो. ओके, ये तुम लोग लिख लेना. HBr वाला रिएक्शन बता रहा हूं मैं. When react with HBr, what I told you, नेगेटिव पार्ट. अभी यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्काइन है तो कैसे भी ऐड कर सकते हो. So that we are getting CH2 double bond CHBr. This is called as vinyl bromide. Common name vinyl bromide. Common name vinyl bromide. IUPAC name bromoethene. IUPAC name bromoethene. Ethene है, ethene. इसको bromine attached है. Again HBr is added. Now here Markovnikov rule is added. Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen across the double bond. ये double bond है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है. So Br goes here and hydrogen goes here. So the structure will be CH3 CH Br2 geminal dihalide 1,1 डाइब्रोमोइथेन. डाइब्रोमोइथेन. ठीक है, ये बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ देख लो. डी देखो, डाइल्यूट H2SO4 CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सो डाइल्यूट H2SO4 मतलब एक्चुअली हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 मतलब 40% and HgSO4 that is 1%. ओके, क्या ऐड होगा, HOH ऐड होगा. H इधर और OH माइनस जाएगा इधर. So what will be the structure? CH2 double bond CHOH. याद है ये क्या है, इनॉल फॉर्म है. इनॉल, इसको मैं बोलता हूँ इथेनॉल. इथेनॉल इसका कॉमन में नाम है विनाइल. so, समझ में, CH2 double bond CH2 group is called as vinyl. Vinyl alcohol. This is nothing but vinyl alcohol. So ये बॉन्ड इधर आएगा और कार्बन का वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन इधर है. So what will be the structure we have? CH3 CHO. This is nothing but ethanol. IUPAC नेम हो गया. Acetaldehyde, ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, है ना. नेक्स्ट इज रेड हॉट Fe. ये तो मैंने रिएक्शन लिख के दिया है तुम लोग को. क्या है ना रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है बेंजीन. यू कैन राइट दैट अगेन. F ओजोन. CH सर आपने नहीं करवाया, अभी करवा रहा हूं. ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ओजोन कैसे ऐड होगा, देखो ध्यान से देखना. CH तो पहले ओजोनाइड बना दो. याद है ना ओजोनाइड कैसे बनाया था. अभी चेक करो कार्बन का वैलेंसी 4 हुआ है कि नहीं हुआ है. 1 2 3 1 2 3. इसका मतलब 4 नहीं है. तो डबल बॉन्ड में जब ऐड होता है तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड गायब होता है. बट ट्रिपल बॉन्ड में जब ऐड होगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा. तो इसका मतलब जब मैं इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूंगा, मतलब जिंक, तो क्या होगा, रिमेंबर दैट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा. ओके, सो दैट देयर इज अ लॉस ऑफ ZNO.
समझ में आया ना? तो ये CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बट CC बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग. So what will be the product? CHO, CHO, और ये भी जुड़ गया ना. So I'm writing CHO, single bond, CHO. This is called as glyoxal. Glyoxal. ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूं तुम लोग के साथ. हाँ, डोंट राइट. बाद में ब्रेक के बाद तुम लोग इसको मतलब हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, वो चीजें कॉपी कर लो. ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे. ब्रेक के बाद 9:45 पे विल कंटिन्यू दिस. थैंक यू वेरी मच. ओके, विल बी कंटिन्यूइंग नाउ विद द सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस. इंस्टेड ऑफ एसिटिलीन यू टेक प्रोपाइन. यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट हैपेंस when propine reacts with a H2, then Br B HCl C dilute H2SO4 and HgSO4. C red hot Fe. D ओजोन. इसमें ना दो चीजें और मैं ऐड करता हूँ. डाइल्यूट KMnO4, बेयर्स रिएजेंट. बेयर्स रिएजेंट. ओके, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बताने वाला हूँ. एंड हॉट KMnO4. ठीक है, चलो ट्राई करो, चेक करो. जिन लोगों को आया है आंसर्स वो क्रॉस चेक करो, जिन लोगों को नहीं आया ध्यान दो. ओके, चलो सब देखो. व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, है ना? प्रोपाइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन. ओके, जिनको नहीं आया वो मैं आंसर बता रहा हूं अभी. फर्स्ट प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH react with bromine in presence of carbon tetrachloride. Sometimes carbon disulfide. See, carbon tetrachloride, carbon disulfide, all these are organic solvents. Okay, so the first product is like this way: bromine double bond CH Br. इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो propene. Okay, further another molecule of bromine is reacted in presence of carbon tetrachloride. Correct. So what will be the structure? CH3 C Br Br CH Br and Br. इसका नाम क्या होगा? 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, ये कितने लोगों का सही आया? यस, प्रतीक, हैव यू गॉट द आंसर? आर्य बागवे, राउत, राउत आंसर आला का? पुष्कर, अंडरस्टूड? तू काहीतरी ऍसिटोन लिहिलंस. दोघांनी पण, पुष्कर आणि राऊत ऍसिटोन. तुमच्या दोघांचा आन्सर सेम कसा आला? ओके, नेक्स्ट वन. आई एम नॉट, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब
डिटेलिंग में. I just move ahead now. C triple bond CH plus H plus मतलब HCl है ना. So ये क्या होगा? H plus Cl minus. Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen across double bond and triple bond. C triple bond CH. This carbon has no hydrogen. This carbon has one hydrogen. So negative part Cl minus goes to the carbon containing less number of hydrogen. और hydrogen इधर जाएगा. Addition reaction. Use colored pen or draw the arrows the way I am doing. CH3 CCl. यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2. एडिशन, एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो एक पाई बॉन्ड डिसअपियर हो गया. इसका नाम होगा 2-chloro-propene. 2-chloro-propene. Another molecule of HCl is added. Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen. तो ये जाएगा Cl इधर और हाइड्रोजन जाएगा इधर. Yes, Krish, have you got it? So यहाँ पे क्या होगा? CH3 CCl, यहाँ पे होगा Cl and CH3. वैष्णवी, are you getting the answer? इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. जिन लोगों का नहीं लिखा है, नहीं आया आंसर, प्लीज नोट डाउन फास्ट. चलो, आई एम मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. हाइड्रेशन ऑफ मतलब ना एग्जाम में ऐसे ही आता है. दे आर नॉट सेइंग यू कि इसमें वाटर ऐड करना है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए. व्हेन आई से डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी है. ओके, so H2SO4 and HgSO4 act as what? Catalyst. Okay, so negative part H plus OH minus. Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen और H plus इधर जाएगा. मार्कोनिकॉव्स रूल. हाँ देखो देखो, हम लोगों ने अल्कीन में पढ़ा था, वापस आ गया और बार बार आ रहा है. और ऑर्गेनिक में ना ऐसे ही कंसेप्ट होता है जो बार बार आते हैं. हाँ, लोग अननेसेसरी उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. यार ये क्या है, कैसे याद
याद हो जाता है। इसका नाम है प्रोपीनटुऑल। इन फॉर डबल बॉन्ड, इनॉल है ना, इनॉल। अभी इसमें क्या होगा, व्हाट इज दैट, क्या होगा बताओ। ये बॉन्ड इधर आ गया, ऑटोमेरिज्म ना, और ये हाइड्रोजन जाएगा इधर कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तुम लोग भी एरोज ऐसे ही करना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड का हो जाता है सी सिंगल बॉन्ड और CH3। इसका IUPAC नेम है, दिस इज प्रोपैनोन। क्या ये, प्रोपैनोन, बट इट इज फेमस बाय दिस नेम एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। ओके, नेक्स्ट वन, रेड हॉट Fe, ये मैंने करवाया है, वापस करवाऊं क्या, लिखोगे ना तुम लोग, प्लीज राइट डाउन ना, वो लिख लो तुम लोग, आई डोंट वांट टू डील दिस अगेन। नेक्स्ट वन इज ओजोन। ओजोन के साथ देखो, ओजोन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C में कुछ चेंज नहीं होगा, ये CH लिखा मैंने, और हम लोग ओजोनॉइड बनाएंगे, है ना, ऐसे ओजोनॉइड बना दिया। अभी कार्बन का वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अभी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, CO, CO एंड OO, CO, CO एंड OO। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अच्छा, इंस्टेड ऑफ CH डबल बॉन्ड आई कैन ऑल्सो राइट CHO, इट्स अ कंडेंस फॉर्म। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 एंड 3, 2 ऑक्सो प्रोपेनाल, 2 ऑक्सो प्रोपेनाल। लिखो, write D reaction again. We discussed that reaction. Mesitylene 135 trimethyl benzene. Same reaction है वो।
Yes. Done? Yeah. Hello. Okay. So next one is with dilute KMnO4 and hot KMnO4 F. हाँ ये रिएक्शंस तुम लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, बट वी कैन राइट ना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. You know क्या होता है रिएक्शन when I use dilute KMnO4? Dilute KMnO4. Okay, cold dilute KMnO4. Bare test. So what will happen? देखो H2O और O. So the product is what? CH3. यहाँ पे आएगा OH, डबल बॉन्ड CH OH, है ना? ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर अपने को. Is that clear? So color of KMnO4 disappear. Color of KMnO4 disappears. Because of this, इसका नाम क्या होगा? Propene 1,2 diol. ठीक है. अच्छा, अगर समझो मैंने हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट किया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड मतलब फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, हॉट KMnO4. देखो क्या होता है, CH3 इन शॉर्ट यहाँ पे ना 2 बार OH ऐड होता है ऐसे. Okay, now this is highly unstable and it loses water molecule यहां से और यहां से. When two OH group bonded with the same carbon atom, मतलब geminal dihydroxy group are highly unstable, so there is a loss of H2O and the product is CH3 C double bond O. ये देखो C double bond O, CO है ना, CHO, और ये क्या हो गया CHO, which is further oxidized. पता है ना, aldehydic hydrogen can be easily oxidized, so the product is what? CH3 C double bond O COOH. क्या हो गया ये? 2-oxopropanoic acid. 2-oxopropanoic acid लिख लो. Now few more some typical examples or reactions I want to take.
द वन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के ऊपर, एंड एडिशन ऑफ HX के ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे, एक दो तीन रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ओके, एंड देन विल गो फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। यस, डन, एवरीबॉडी डन, हो गया सबका लिख के? प्लीज राइट इट प्रॉपर वे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, अपने इनोवेशंस उसमें मत ऐड करना, ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर गलत लिखा तो आगे पूरा गलत हो जाएगा, है ना, तो इसलिए डोंट डू एनी मिस्टेक, और अगर मैंने मिस्टेक किया तो वो प्लीज बताना मुझे, सर ये आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, आई विल रेक्टिफाई इट इमीडिएटली, ओके। यस राउत, हैव यू डन? भगवे, I purposely taking some name consistently because of the parents meeting, okay. Vaishnavi, done? Okay, good. So here I am writing, what is the action of dilute H2SO4 and HgSO4 on a butanine, B butyne, C 3-methyl butanine, 3-methyl butanine, okay, I think that is sufficient, right? चलो देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर देखो, इसलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो ये सिर्फ नाम नाम है, हाँ, मतलब मैं जैसे कुछ रैंडम नाम लूंगा, अरे वो संतोष पता है तुम लोग को, अरे वो यार वो, अरे वो धीरेन, धीरेन पता है क्या तुम लोग, मतलब तुम लोग के दिमाग में संतोष और धीरेन कुछ अलग ही बनेंगे फिर, है ना। बट अगर मैंने पूछा, मतलब दोज हु नो ईच अदर वेरी वेल, जिन लोगों ने एक दूसरे को देखा है और मैंने उनका नाम लिया, इमीडिएटली यू कैन से, है ना, अरे हाँ सर ये है वो, सेम वे ये नॉमेनक्लेचर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम लोग को पता है कि कैसे किसी कंपाउंड को नाम देना है, मतलब अपने ह्यूमन बीइंग में वी आर गिविंग रैंडम नेम, ओके, बट यहाँ पे सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स है, सो इट इज अगेन, देखो ये भी एक रिवीजन हो गया किसका, नॉमेनक्लेचर का। ब्यूट 1 ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 मतलब ये फर्स्ट कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ पे CH, व्हाट आई सेड, हाइड्रेशन, है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4 and HgSO4, correct? Negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen. वो जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो पुजारी एक ही मंत्र बार बार बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही मंत्र जप रहा हूँ, क्या, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोन भी मेरा वैसे ही बनते जा रहा है अभी, है ना, बराबर है। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, CH3, then CH2, then COH और डबल बॉन्ड CH2,
व्हाट आई सेड नेक्स्ट, ये इनॉल हो गया ना, इसका नाम लिखो। 4 कार्बन है, 4 ब्यूट, 1 इन 2 ऑल, है ना, 1 2 3 4, 1 इन क्यू फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 ऑल क्यू सेकंड कार्बन पे OH हुए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा टॉटोमराइजेशन। इनॉल है ना, ये पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, क्या रहेगा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, ब्यूटानोन और ब्यूटेन टून। देखोगे, अच्छा बी करो, सी करो, आंसर IUPAC नेम चैट बॉक्स में डाल दो। गलत आया तो भी चलेगा यार, 2-3 गालियां सुन लो, उसमें क्या बड़ी बात है, बट वो गलतियां करने के बाद ही लोग सीखते हैं। सो डोंट हेजिटेट, कम ऑन डू इट प्रत्येक। Okay, just look at here, but CH3 C triple bond C CH3. So HOH is added, dilute H2SO4 and HgSO4, H goes to the carbon and OH goes to this carbon. So we have CH3 CH double bond COH and CH3. So this one is here and this goes here. So what will be the structure, CH3 CH2 C double bond O CH3, butanone, nothing but butanone. Next one, what I said, CH3 C, what was that, I think I lost my connection. So can you tell me the name of the compound, please? Anybody? 3-methyl but 1-ine. 3-methyl but 1-ine. Okay. CH3 C CH3 CH C triple bond CH HOH. So the product will be CH3 CH CH3. Here we have a CHOH double bond CH2, and this will give you the enol form CH3 C double bond O. I think here there should not be H. Okay, and we have a CH3. The name of this compound 1, 2, 3, and 4. So this is 3-methyl but 2-ene, sorry, 1-ene 2-ol. What about this 3-methyl butane 2-ol? Is that clear? Okay. So please note down. Here we finish the alkynes. I'll just read the uses of alkynes. बाकी लोग लिखो. Ethyne or acetylene is used in a preparation of ethanol, acetaldehyde, propanone, acetone, ethanoic acid, that is acetic acid. It is used in the manufacturing of polymers, synthetic rubber, synthetic fiber, plastic, etc. For artificial ripening of fruits, last lecture में मैंने बताया था
अभी भी बहुत सारे लोगों ने वो होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया है। हाँ, इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, वेल्डिंग वगैरह में they are using a very high temperature flame for melting of metals, cutting, welding के लिए। तो वो होता है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। तो mixture of oxygen and acetylene is used for that purpose। Okay, so these are the uses of acetylene। Aromatic compound। So what do you mean by aromatic compounds? Aromatic compounds are those compounds which has characteristic odor। ऐसे पहले माना जाता था। अभी aromaticity उसको aromaticity भी बोलते हैं। What do you mean by aromaticity? Aromaticity is the property of organic compound which show the properties of aromatic compound। मतलब क्या? There are three types of compound which we have to discuss now: aromatic compounds, then non-aromatic compounds। मैं ऐसे लिखता हूँ, aromaticity, non-aromaticity, एक मिनट, anti-aromaticity and non-aromaticity। aromaticity, anti-aromaticity, aromaticity and non-aromaticity। देखो aromaticity में क्या होता है? फर्स्ट थिंग, क्लोज चेन। ये भी क्लोज चेन, ये ओपन चेन और क्लोज चेन भी बोल सकते हैं, बट मैं अभी क्लोज चेन के बारे में ही बात करता हूँ। सेकेंड वन, ऑल्टरनेट। अच्छा एक मिनट, ऑल एटम्स इन अ चेन आर sp2 hybridized। all the atoms in in a chain are sp2 hybridized। Here also the same thing, all atoms in a chain are sp2 hybridized। all atoms in a chain are not
sp2 hybridized. So it may be sp3 hybridized also. Third point. Alternate double bond. उसको वर्ड है conjugation. Conjugation in double bond and triple double bond and single. मतलब alternate double bond मतलब single bond double bond single bond double bond single bond double bond single bond double bond ऐसे. Here also alternate और अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ conjugation. No conjugation. No conjugation. Okay. अच्छा alternate double bonds conjugation मतलब उसमें होता है conjugation with pi bond, pi bonds, pi bond and lone pair. Resonance याद है ना resonance मतलब यहाँ पे possible resonance is possible. Resonance इधर भी resonance, no resonance. तो non aromatic, aromatic or anti aromatic we can easily distinguish. Now this point distinguished aromatic and anti aromatic. What is that? Follow Huckel's rule. What is that? Huckel's rule का मतलब क्या? That is number of pi electrons are in this form are in 4n plus 2 form. मतलब 4n plus 2 pi electron. That is 4n plus 2 pi electron. Wait, I will give example. मैं बताऊंगा. Do not follow Huckel's rule. Do not follow Huckel's rule. Number of pi electrons are in 4n form. That is 4n pi electron. Do not follow Huckel's rule. ठीक है, ये लिख लो जरा फटाक से. I'll give example. Wait for some time. I'll give example.
I hope everybody has done this. Should we move ahead? इसमें और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वो ये है aromatic compounds are more stable, less stable. अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करता, बट दिस आर आल्सो लेस स्टेबल. मतलब अगर मैं बात करूं ये तीनों में ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव लीस्ट स्टेबल ये होता है. सो आई विल राइट दिस वे. These are least stable. Least stable means more reactive. So anti-aromatic compounds are least stable. Anti-aromatic compounds are least stable. समझ में आ रहा है? ओके, चलो अभी एग्जाम्पल में को हम लोग अप्लाई करते हैं. समझो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया. सब लोग ध्यान दो, सब लोग प्लीज पे अटेंशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट? अभी देखो, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, तो हर जगह पे एक हाइड्रोजन रहेगा. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना, सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है कि नहीं? देखो ये 1 2 और 3, 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 3 सिग्मा बॉन्ड. सो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. यस और नो? ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. देखो ऑल्टरनेट है क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है. कॉन्जुगेशन है. रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? ये देखो, इसको मैंने ऐसे हाँ रखा, सर. तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या, सॉरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? ये है अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो रेजोनेंस भी पॉसिबल है, राइट? मतलब पहले 4 कंडीशन. क्लोज चेन है, ऑल एटम्स इन अ चेन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है मतलब कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है. अभी लास्ट वाला हक्कल्स रूल. अभी देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 1 2 3 पाई बॉन्ड. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब मैं क्या लिखता हूँ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. Can I write this 6 pi electrons in this fashion? By the way, ये n जो होता है ना, that n stand for, यहाँ पे दोनों जगह पे लिखना, n is equal to 0 1 2. ये कोई एक इंटीजर है. This is not number of electron, it is a number. मतलब ये 6 को अगर मैंने डिवाइडेड बाय 4 किया तो 4 1s are 4 ना, करेक्ट? सब रिमाइंडर क्या होगा? 2. अभी इस फॉर्मेट, मतलब ये 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, है ना? बराबर कि नहीं? ऐसे लिखता ना मैथमेटिक्स में, 4 इंटू 1 प्लस 2. मतलब ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से फॉर्मेट में लिखे मैंने? 4n प्लस 2. बराबर है? That means it follows Huckel's rule. Therefore, it is aromatic. समझ में आया? Understood what I am saying? Hello, everybody got the point? Yes. और एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. देखो और एक एग्जाम्पल इधर देखना सब लोग. इसका नाम है नैफ्थलीन. क्या नाम है इसका? नैफ्थलीन नाम है, नैफ्थलीन. यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल. देखो मैंने जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही ड्रॉ करना. ओके. अच्छा देखो क्लोज चेन है, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. ऑल्टरनेट हो गया. मतलब कॉन्जुगेशन है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? यस आई कैन ड्रॉ. कैसे ड्रॉ करना है? मतलब it looks like this way.
ऐसे हो जाएगा। सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस हो गया। टोटल कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड मतलब कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस 10 इज डिवाइडेड बाय 4 4 2s are 8 सब रिमाइंडर क्या हो गया 2। अभी ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। देयरफॉर नैफ्थलीन इज आल्सो एरोमेटिक। इसका नाम है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन नैफ्थलीन नैफ्था बॉल में जो होता है ना वही है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द नेम ऑफ एंथ्रासीन। क्या ये? एंथ्रासीन। करेक्ट। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो। You can draw the resonance structure also. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 8 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बराबर कि नहीं? तो 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हकल्स रूल क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। देयरफॉर एंथ्रासीन क्या हो गया? एंथ्रासीन इज एरोमेटिक। अंडरस्टूड? यस प्लीज नोट डाउन दिस। और हम लोग को एग्जांपल्स देखने हैं। हाँ प्लीज नोट डाउन दिस। चलो हो गया लिख के? डन। चलो आई एम मूविंग अहेड। नेक्स्ट वन। अभी कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। लेट अस टेक दिस एग्जांपल।
इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम है? साइक्लोप्रोपीन। देखो ध्यान से देखो, दिस कार्बन 1 2 3 तीन बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन रहेगा ना यहाँ पे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? देखो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा इधर रहेगा। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इधर देखो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा, मतलब ये कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। तो जैसे ही वो sp3 बन जाता है ना, ये आगे कुछ देखने का ही नहीं, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। ये देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और यहाँ पे आया प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। कटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये कार्बन भी sp2 है। कार्बोकटायन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। रिकलेक्ट, कनेक्ट, है ना। दिस कार्बन देखो ना, 1 2, है ना, 1 2, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा, एक गया ना। सो 1 2 और एक हाइड्रोजन, सो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज। अभी देखो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? तो है। ये देखो यहाँ पे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ये इधर आ गया, सो रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन के। ऑल sp2, क्लोज चेन भी हो गया। नाउ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? एक पाई बॉन्ड है, सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये मैथमेटिक्स वाला ही कंसेप्ट है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। 4 2 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा? 4 zeros are 0 2, so how can I write this electron now? 4 into 0 plus 2, इस फॉर्म में आया ना, मतलब ये क्या हो गया? 4n plus 2, इसलिए मैंने n क्या लिखा था? 0 1 2 3 4, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉलो कर रहा है हकल्स रूल। देयरफॉर साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन is aromatic। सर प्रोपाइल है, क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइल है। हाँ, अरे सॉरी सॉरी, साइक्लो मैंने बोला बट लिखा गलत। साइक्लोप्रोपाइल, करेक्ट। हाँ, अभी इधर देखो और एक एग्जांपल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये sp2 है, ये भी sp2 है, और जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में होता है ना, तो ये भी sp2 होता है। रेजोनेंस मतलब ये देखो, ये इधर आ गया, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस है। इधर भी देखो ना, ये इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर गया, तो इसका मतलब देखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे मिल रहे हैं, है कि नहीं? रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से अभी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? ये देखो एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 4 into 1, 4 into 1 मतलब वो क्या हो गया? ये देखो 4n प्लस पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब it does not follow Huckel's rule, therefore this is anti aromatic। ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो अभी तीनों चीजें समझ में आई। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। चलो मुझे बताओ ये क्या होगा, ये बताओ मुझे। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बताओ मुझे।
ये लिख लो, कमन फास्ट। यस करेक्ट कौमुदी, करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करो। क्विकली ये दो एग्जांपल्स मुझे आंसर करो, क्या रहेगा बता देना मुझे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज वॉच टुडेज वीडियो अगेन एंड अगेन, स्पेशली लास्ट वाला पार्ट। हाँ ये देखो, ये क्या है बताओ, फिर बाद में ये क्या है बताओ, और ये क्या है बताओ। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा ना तो वो कार्बन sp2 होता है हमेशा। सोहम काय रे? हाँ सोहम। हा मला मेसेज पाठवता येत नव्हता अच्छा अच्छा तर ओके। ते यस सो shall I give you the name? मैं आंसर बता देता हूँ, देखो इधर। यस somebody has given me the answer. uh, 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 uh. चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले क्या देखो, sp2 डबल बॉन्ड आया मतलब sp2 ना, एक दो सी क्या है मालूम है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। कितने बॉन्ड है देखो, 1 2 3, तीन बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड है तो चौथा रहेगा सिग्मा बॉन्ड ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो और तीन सिग्मा, तो sp2। तो ये चारों भी sp2 है ना। ओके वेरी गुड। तो अगर चारों sp2 है तो नेक्स्ट जाने का हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल मतलब कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चार। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। इधर देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है। हाँ जो लोग नए स्टूडेंट है प्लीज वॉच केमिकल बॉन्डिंग, sp2 और ये हो गया sp3। ओ वाओ ये sp3 है, तो जैसे ही sp3 है मतलब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। मतलब दिस इज कॉल्ड द साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या होगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक sp2 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 sp2। ये भी क्या रहेगा sp2, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चार। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है ना, sp2। ये भी sp2, व्हाट आई टोल्ड यू sp2। अगर पाई पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है तो ये भी कार्बन क्या होगा sp2। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 4 into 1 plus 2 हकल्स रूल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अंडरस्टूड। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक,
एरोमेटिक। वत्सल समझ में आया? हाँ सर। हाँ, और हम लोग एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू फिनिश दिस लेक्चर। सो टुमारो वी विल डिस्कस मोर लेक्चर्स, मोर स्ट्रक्चर्स एंड विल कंटिन्यू। थर्सडे को ये चैप्टर में खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।